Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss past perfect tense. In the previous session we have already discussed simple past tense and past continuous tense. Now let's discuss past perfect tense. Now first of all, let's see how do we form the past perfect sentence. We form the past perfect by using had with the past participle. This had is actually the third form of have, right? Have, has, that is the first form, then second form is had, and third form is also had. Okay, so subject plus had plus third form of the verb plus object. This is the formula for past perfect tense. Okay, so precisely with all perfect tenses, maybe it is present perfect, past perfect, or future perfect, we use third form of the verb. Okay, now let's read the small sentences over here. I had finished my work, you had finished your work, he had finished, she had finished, it had finished, we had finished, you had finished, they had finished. Okay, now let's see the short forms. I, you had, it, she, they'd, something like that. Okay, I, you, he, she, it, we, you, they had not finished or hadn't finished. Okay, I hadn't finished, he hadn't finished, they hadn't finished. This way. Questions: had I finished, had you finished, had they finished, something like that. Okay, and short answers: yes I had or no we had it, something like that. Okay, now let's read some of the sentences in past perfect tense. They had visited a doctor. He had slept. I had finished my work last year. It had rained heavily last month. The film had started before we reached cinema. They had not visited a doctor. He had not slept. I had not finished my work last year. It had not rained heavily last month. The film had not started before we reached cinema. Had they visited a doctor? Had he slept? Had I finished my work last year? Had it rained heavily last month? Had the film started before we reached cinema? Just pause the session and read out all the sentences at least for 2 times. Okay? Now where do we use past perfect tense? We use the past perfect to talk about an action in the past that happened at a time before another action in the past. अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए. सपोज हम पास्ट में कोई दो घटनाओं की बात कर रहे हैं, दो इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं. अब उन दोनों इंसिडेंट्स में क्या हो सकता है कि है दोनों पास्ट में, लेकिन एक पास्ट में है, एक पास्ट के भी पास्ट में है. ओके, तो पास्ट और जो पास्ट के भी पास्ट है, सपोज हम उसको प्री पास्ट कहते हैं. तो दो इंसिडेंट है, एक पास्ट है और एक प्री पास्ट है. ठीक है, तो जो पास्ट जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में बनेगा, लेकिन जो प्री पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा. ठीक है, जो प्री पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो पास्ट है वो पास्ट सिंपल पास्ट में बनेगा. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, द thief had gone before the police came. ओके, अब यहाँ पे दो घटनाएं हैं. चोर भाग गया था और पुलिस वहां पर आई थी, किसी भी जगह पर पुलिस गई थी. अब पुलिस के आना ये एक घटना है पास्ट टेंस में, लेकिन चोर का चले जाना उसकी भी पहले की घटना है. ठीक है, तो दो घटनाओं में से जो पहले वाली घटना है कि जो चोर है वो पहले चला गया था, वो पास्ट परफेक्ट में आएगी, और जो बाद वाली घटना है वो सिंपल पास्ट में आएगी. इसलिए यहाँ पर द पुलिस केम, ये जो पोर्शन है वो सिंपल पास्ट में है, और पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, वो जो पोर्शन है पुलिस के आने के पहले वाला जो सेंटेंस है वो जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा. ठीक है, तो द thief had gone before the police came. ओके, you had studied English before you moved to Mumbai. ठीक है, मुंबई में आना एक घटना है और इंग्लिश पढ़ना एक दूसरी घटना है, लेकिन मुंबई में आने से पहले इंग्लिश पढ़ ली थी, मतलब इंग्लिश इज इन, जो इंग्लिश पढ़ाई करी वो प्री पास्ट है और मुंबई आने वाला जो है वो पास्ट है. तो जो प्री पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो पास्ट है वो सिंपल पास्ट में आएगा. ठीक है, सो यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू मुंबई. तुमने मुंबई आने के पहले ही इंग्लिश पढ़ चुके थे.
ठीक है, मुंबई आने के पहले ही इंग्लिश पढ़ चुके थे। इसी का क्वेश्चन कैसे बनाए, हैड यू स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू मुंबई, तो मुंबई आए उसके पहले ही तुमने इंग्लिश पढ़ ली थी क्या। ओके, सो बहुत सिंपल है जो इसका यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब भी दो घटनाएं हैं पास्ट टेंस में, एक पास्ट होती है एक प्री पास्ट होती है। प्री पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो पास्ट है वो सिंपल पास्ट में आएगा। ओके, यू हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू मुंबई। I had never seen such a beautiful beach before I went to Phuket. Okay, मैं फुकेत गई उसके पहले ऐसा सुंदर बीच समुद्री किनारा मैंने कभी नहीं देखा था। ठीक है, तो फुकेत जाना इज एन इवेंट दैट इज इन पास्ट, और उसके पहले कभी भी ऐसा बीच नहीं देखना, ये है प्री पास्ट। तो जो प्री पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में आया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, दो पास्ट की घटना है। 99% केसेस में जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है दो पास्ट की घटनाएं होती है, एक पास्ट होती है एक प्री पास्ट होती है। ओके, आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। उसका वॉलेट पहले खोया है, उसके बाद में उसके पास पैसा नहीं था, तो वॉलेट जो पहले खोया है वो प्री पास्ट हो गया, उसके बाद उसके पास पैसा नहीं था वो पास्ट हो गया। ठीक है, सो आई डिडंट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। Tanmay knew Mumbai so well because he had visited the city several times. तन्मय मुंबई को अच्छे से जानता है, सब एरियाज वगैरह, क्योंकि वो काफी बार यहाँ पर आ चुका है। तो मुंबई को पता है उसको, मुंबई को वो जाना है उसने, उसके पहले वो कई बार आ चुका है। तो मुंबई को जानना इज एन इवेंट ऑफ पास्ट, बट मुंबई में बहुत बार आना इज एन इवेंट ऑफ पास्ट, और वी कैन से प्री पास्ट। ओके, Had Sunita ever studied French before she moved to France? फ्रांस में आना that is an event of past, और उसके पहले फ्रेंच पढ़ना is an event of pre-past. ओके, सो सुनीता ने कभी भी फ्रेंच पढ़ी थी क्या, वो फ्रांस आई उसके पहले कभी भी फ्रेंच उसने पढ़ी थी क्या। ठीक है, she understood the movie because she had read the book. वो जो मूवी है वो बाद में समझी, लेकिन किताब उसने पहले पढ़ी। ठीक है, तो जो किताब पहले पढ़ी दैट इज एन इवेंट ऑफ प्री पास्ट। ओके, और मूवी उसने बाद में देखी, तो उसको मूवी इसलिए समझ में आई क्योंकि वो ऑलरेडी किताब जो है वो पढ़ चुकी थी। हिंदी में जब आप ये पढ़ चुका कर चुका ये जो सब होता है ना, वो इंग्लिश में जाके पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है ना। अनन्या हैड नेवर बीन टू अ डिस्को बिफोर लास्ट नाइट। अनन्या कभी भी डिस्को में नहीं गई थी कल रात के पहले। ठीक है, we were not able to get a hotel room because we had not booked it in advance. हमको ये होटल का रूम नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने पहले से बुक नहीं किया था, पहले से बुक नहीं कर चुके थे हम। ओके, had you ever visited the US before your trip in 2010? कभी भी तुमने 2010 में जो तुम्हारी ट्रिप थी उसके पहले कभी यूएस गए थे क्या? तो दूसरा वाला आंसर करा yes I had been to the US once before. मैं एक बार यूएस होकर आया हूँ पहले। ठीक है, तो पास्ट और प्री पास्ट बहुत सिंपल है, दो चार बार आप सब सेंटेंसेस रीड करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। Apart from that, we use the past perfect to show that something started in the past and continued up until another action in the past. Okay, दोनों past के इवेंट हैं, एक शुरू हुआ और वो बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहा, तो भी हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। ओके, जब ये कार खराब हुई, डैमेज हुई, उसके पहले हम लोगों ने 10 साल तक वो कार यूज की थी, हमारे पास 10 साल तक वो कार थी। हैड डबल बार आया, कंफ्यूज मत होइए। एक हैड जो है वो जो क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं वो हैड है, और दूसरा जो है हैव का थर्ड फॉर्म है। ओके, सो वी हैड दैट कार फॉर 10 years बिफोर इट ब्रोक डाउन। ये कार हमारे पास 10 साल तक थी, ये जब डैमेज हुई या ब्रेक हुई उसके पहले। Okay, by the time Avi finished his studies, he had been in London for over 8 years. Okay, जब तक अवी की पढ़ाई खत्म हुई तब तक अवी को लंदन में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। ओके, तो पढ़ाई बाद में खत्म हुई और उसने रहना कब शुरू किया था? पढ़ाई खत्म होने के 10 साल पहले। ओके, तो पास्ट टेंस कौन सा हुआ? अभी ने अपनी पढ़ाई खत्म करी, और प्री पास्ट कौन सा हुआ? उसका लंदन में रहना। ओके, they felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years.
वो 40 साल से उस मकान में रहे थे, इसलिए उनको जो बहुत बुरा लग रहा था वो मकान को सेल करना। ओके, तो मकान में रहना वॉज प्री पास्ट और मकान को सेल करना वॉज पास्ट, इज पास्ट। ओके, सो यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा और हेड ऑन दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। अवी वॉज इल, क्यों? ही हैड ईटन टू मच चॉकलेट। ओके, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसने चॉकलेट खा ली, इसलिए वो बीमार हो गया। तो बीमार बाद में, चॉकलेट पहले खा ली और बीमार बाद में हुआ, तो चॉकलेट पहले खाई इसलिए ही हैड ईटन आया, क्योंकि ये प्री पास्ट है इसलिए पास्ट परफेक्ट आया है, और बीमार बाद में पड़ा इसके लिए ये सिंपल पास्ट। सुजन अराइव्ड लेट, हर कार हैड ब्रोकन डाउन। ओके, उसकी कार पहले खराब हुई, इसकी वजह से वो लेट हुई, तो पहले क्या हुआ, प्री पास्ट में क्या था, कार का खराब होना, तो ये जो पोर्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और उसकी वजह से वो लेट हुई, ये बाद में हुआ, तो ये पास्ट में आएगा, सिंपल पास्ट। ओके, आई वॉज लेट फॉर द अपॉइंटमेंट, द डॉक्टर हैड ओके गॉन होम। डॉक्टर पहले चला गया था, उसके बाद में हॉस्पिटल पहुंचा, तो पहले कौन सी घटना हुई, डॉक्टर का जाना, तो वो प्री पास्ट हुआ, और उसके बाद में लेट हुआ, मैं लेट पहुंचा वहां पे, तो ये हुआ पास्ट। ओके, we normally use the past perfect if we tell the story like this. Okay, एक छोटा एग्जाम्पल है, विजय went home early, he had worked hard. Okay, अगर आपकी कोई भी कहानी आप बात कहे जा रहे हो और आप फ्लैशबैक में जा रहे हो, पीछे से पीछे जा रहे हो, तो आप जो पहले वाला इवेंट है या पहले वाला जो सेंटेंस है, इसके सिवाय बाकी सारा जो होगा वो सब कुछ पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो, स्टोरी आगे जा रही है आपकी, ठीक है, तो सारी स्टोरी जो होगी वो पास्ट टेंस में होगी। ओके, बट वी नॉर्मली यूज द पास्ट सिंपल इफ वी टेल द स्टोरी लाइक दिस, विजय वर्कड हार्ड देन ही वेंट होम। ओके, डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में? यहाँ पर क्या हो रहा है कि विजय घर जल्दी चला गया, उसने बहुत काम किया था। ओके, वो क्योंकि काम उसने पहले किया था, तो ये प्री पास्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि विजय ने काम किया, उसके बाद वो घर चला गया। ओके, स्टोरी आगे की तरफ जा रही है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, वी ऑफन यूज द पास्ट परफेक्ट विथ आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, until, when. We use it for the earlier action. We'll read some examples. She arrived late because her car had broken down. वो लेट आई क्योंकि उसकी जो कार थी वो खराब हो गई थी, है? तो she arrived, ये पास्ट टेंस है, और पहले कार खराब हुई, तो ये जो है वो पास्ट परफेक्ट होगा। After he had seen the doctor, पवन got better. पहले कौन सा इवेंट हुआ, डॉक्टर को मिलना, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, उसका ठीक होना, पवन का ठीक होना। ओके, तो डॉक्टर को मिलना विल बी इज प्री पास्ट, और पवन का ठीक होना इज पास्ट। तो ये जो पोर्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और ये सिंपल पास्ट में। सुरीली हैड फोन्ड हर बॉस बिफोर शी टुक हर कार टू द गैरेज। तो पहले सुरीली ने क्या किया, फोन किया, तो फोन करना इज प्री पास्ट, उसके बाद में वो गैरेज में गई तो वो पास्ट हुआ, तो ये प्री पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट। ओके, ऑलरेडी एंड नेवर, इसके साथ में भी हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई अराइव्ड एट 6 PM बट आयुष हैड ऑलरेडी गॉन। ओके, वो 6 बजे पहुंचे, मैं 6 बजे पहुंची, पर आयुष मेरे आने से पहले ही जा चुका था। अब दोनों ही पास्ट टेंस है, दोनों ही पास्ट के इवेंट है, ये पास्ट है और ये प्री पास्ट है। मैं पहुंची, उसके पहले ही आयुष जा चुका था। ओके, पास्ट एंड प्री पास्ट। अनु हैड नेवर बीन लेट बिफोर, अनु इसके पहले इतनी लेट कभी नहीं हुई। देन फोर एंड सिंस के साथ में, Anup met his old friend in 1998. He had not seen her for 5 years or he had not seen her since 1993. Okay, वो 1998 में अपने फ्रेंड को मिला, उसके पहले उसने 5 सालों तक उसने अपने फ्रेंड को नहीं देखा था या नहीं मिला था। ओके, तो ये बाद वाला इवेंट है, मिलना इस बाद वाला इवेंट, लेकिन उसके पहले जो 5 साल तक वो नहीं मिला था वो पास्ट का भी पास्ट हो गया, मतलब प्री पास्ट। ठीक है, तो यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ओके, द पास्ट परफेक्ट ऑफ हैव इज had or we can say she arrived late because she had problems starting the car. वो लेट आई क्योंकि उसको कार को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगेन हैड डबल बार आया, कंफ्यूज मत होइए। एक हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट के लिए आया, दूसरा हैड जो है वो हैव के थर्ड फॉर्म के लिए आया है। हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी हैड ही होता है। ओके,
चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। शी इन स्वीडन बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे। टू लिव मतलब लिव हमको यूज करना है एज अ वर्ब, तो इसका करेक्ट फॉर्म हमको यहाँ पे फिल करना है। बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे मतलब नॉर्वे के जाने के पहले की बात है, इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा पास्ट परफेक्ट आएगा। तो शी हैड लिव्ड इन स्वीडन बिफोर शी वेंट टू नॉर्वे। आफ्टर वी ओके, कॉर्नफ्लेक्स पहले खाया और हरी बाद में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर आएगा वो पास्ट परफेक्ट आएगा। सो आफ्टर वी हैड ईटन द कॉर्नफ्लेक्स हरी केम इन, हमने कॉर्नफ्लेक्स खा लिया उसके बाद में हरी आया। ओके, बिफोर रवि रेंट टू अनूप्स हाउस। ओके, रवि अनूप के घर गया उसके पहले उसने अनूप को फोन किया, मतलब फोन करने वाली जो घटना है वो पहले हुई है, तो फोन करने वाली जो घटना है वो पास्ट परफेक्ट में होगी, तो ही हैड फोन्ड हिम। Okay, Vijay helped her grandma in the house because his father had told him so. पापा ने पहले बोला विजय को हेल्प करने के लिए और विजय ने हेल्प बाद में करी, तो पापा ने जो बोला वो प्री पास्ट हुआ। ठीक है, तो फादर हैड टोल्ड हिम सो। ओके, उसके बाद विजय ने हेल्प करी, तो ये पास्ट में आएगा। द कैट हिड अंडर द चेयर बिकॉज द चिल्ड्रन हैड बीन सो लाउड। ओके, बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, उसके बाद में जाकर के जब जो है वो जो ये कैट है वो चेयर के नीचे जाके छुप गई। ओके, तो पहले क्या हुआ, बच्चों का जोर से चिल्लाना, तो वो प्री पास्ट हो गया, और उसके बाद कैट का जाके चेयर के नीचे छिपना वो पास्ट हो गया। तो ये जो पोर्शन है हिट, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइड, तो ये सिंपल पास्ट हुआ और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। ओके, बिफोर द स्टूडेंट स्टार्टेड टू राइट द टीचर देयर मोबाइल फोन्स। ओके, स्टूडेंट्स ने लिखना बाद में शुरू किया, टीचर ने मोबाइल फोन पहले कलेक्ट किए, तो टीचर ने जो मोबाइल फोन कलेक्ट किए वो प्री पास्ट हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। द टीचर हैड कलेक्टेड देयर मोबाइल फोन्स। ओके, आफ्टर मनु हिज ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट द फ्लैट। ओके, पहले मनु ने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद उसने फ्लैट से वो रवाना हुआ या निकला। ओके, तो आफ्टर मनु हैड फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, पहले उसने ब्रेकफास्ट किया था इसलिए ये जो इवेंट है वो प्री पास्ट हुआ और ये जो इवेंट है वो पास्ट हुआ। सो आफ्टर मनु हैड फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट द फ्लैट। अनु रिपेयर्ड हर ग्लासेस बिकॉज हर ब्रदर टू ब्रेक। ओके, तो पहले ग्लास टूटा उसके बाद अनु ने रिपेयर करवाया, तो कौन सी घटना पहले हुई, ग्लास टूटने वाली। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, प्री पास्ट। सो हर ब्रदर हैड ब्रोकन। ओके, अनु रिपेयर्ड हर ग्लासेस बिकॉज हर ब्रदर हैड ब्रोकन देम। ओके, सिंपल है। दो पास्ट में से आपको खाली डिसाइड करना है कौन सी घटना जो है वो पहले हुई है बाद में हुई। जो पहले हुई है पास्ट में उसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट में भी जो बाद में हुई है उसके लिए सिंपल पास्ट आएगा। बाय द टाइम द शो बिगेन ऑल फ्रेंड्स। ओके, शो बाद में शुरू हुआ, फ्रेंड्स पहले आए, तो ऑल फ्रेंड्स हैड अराइव्ड। ओके, जब तक शो शुरू हुआ तब तक सब दोस्त आ चुके थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जस्ट सेशन को पॉज करके एक या दो बार सारे सेंटेंसेस रीड करिए, यू विल गेट टू नो इजीली। ओके, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। अनवर रिसीव अ गोल्ड मेडल विन द रेस। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनको ज्वाइन करके इनको यूज करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके, नाउ अभी हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, अभी हमें यहाँ पर पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अभी क्या होगा, अनवर पहले रेस जीतेगा उसके बाद उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। ऑब्वियसली इसका मतलब पहले उसने रेस जीती होगी फिर उसको गोल्ड मेडल मिला होगा, तो क्या होगा, जो गोल्ड मेडल मिलने वाला पोर्शन है वो सिंपल पास्ट में होगा और विन द रेस वाला जो पोर्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ओके, क्योंकि वो प्री पास्ट है। ओके, तो अनवर रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल बिकॉज ही हैड वन द रेस, बिकॉज ही हैड वन द रेस। ओके, अनवर को गोल्ड मेडल मिला क्योंकि उसने रेस जीती थी। इसी तरह से हरी गो टू प्रिजन रॉब द बैंक, तो पहले क्या होगा, हरी ने बैंक में चोरी की होगी उसके बाद में वो जेल गया होगा, तो जो रॉब द बैंक वाला पोर्शन है वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, और गो टू प्रिजन वाला जो पोर्शन है वो सिंपल पास्ट में। ओके, सो हरी वेंट टू प्रिजन बिकॉज ही हैड रॉब द बैंक, क्योंकि उसने बैंक लूटा था इसलिए वो जेल में गया।
इसी तरह से द पुलिस अरेस्ट अरुण स्टील द डायमंड, तो पहले क्या होगा, उसने डायमंड चोरी किया होगा, उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया उसी की वजह से। तो द पुलिस अरेस्टेड अरुण बिकॉज ही हैड स्टोलन द डायमंड, क्योंकि उसने डायमंड चुराए थे इसलिए पुलिस ने अरुण को अरेस्ट किया। ओके, तो पहले डायमंड चुराने वाला इवेंट प्री पास्ट और उसके बाद में अरेस्ट ऑफ अरुण इज पास्ट। अवी एंड कवि गो टू हॉस्पिटल द शार्क अटैक, तो पहले क्या हुआ होगा, शार्क ने अटैक किया होगा, उसके बाद ही अवी और कवि हॉस्पिटल गए होंगे, उसी की वजह से अवी और कवि हॉस्पिटल गए होंगे। तो अवी एंड कवि वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज द शार्क हैड अटैक्ड देम, द शार्क हैड अटैक्ड देम। ओके, ये पोर्शन जो है वो प्री पास्ट है इसलिए पास्ट परफेक्ट में आएगा। अंकुर गेट हिज डिग्री स्टडी हार्ड, ओके, अंकुर ने पहले मेहनत करी होगी उसके बाद ही उसको डिग्री मिली होगी अपने एग्जाम में पास होने की वजह से। तो अंकुर गॉट हिज डिग्री बिकॉज ही हैड स्टडीड हार्ड, ओके, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई करी थी इसलिए उसको वो पास हुआ, इसलिए उसको डिग्री मिली। रीता लॉस हर जॉब अराइव लेट, आई एम सॉरी, रीता लूज हर जॉब अराइव लेट। ओके, रीता ने अपना जॉब क्यों खो दिया होगा, क्योंकि वो लेट आती थी। ओके, सो पहले क्या हुआ, वो लेट आने लगी थी, उसके बाद में उसका जो जॉब है वो गया उसके हाथ से। तो रीता लॉस्ट हर जॉब बिकॉज शी हैड अराइव्ड लेट, बिकॉज शी हैड अराइव्ड लेट। ओके, रवि एंड नम्रता बाय अ कार विन द लॉटरी, ओके, पहले उन लोगों ने लॉटरी जीती होगी उसके बाद ही उसी पैसों से कार खरीदी होगी। तो पहले क्या हुआ, विन द लॉटरी, फिर क्या हुआ, बाय अ कार। सो विन द लॉटरी वाला जो पोर्शन है वो प्री पास्ट है और बाय अ कार दैट इज इन पास्ट। सो रवि एंड नम्रता बॉट अ कार बिकॉज दे हैड वन द लॉटरी, बिकॉज दे हैड वन द लॉटरी। रीता गो टू डिस्को वॉश हर हेयर, ओके, डिस्को जाने से पहले वो अपने बाल धोएगी, डिस्को में जाने के बाद तो नहीं धोएगी ना, तो पहले उसने बाल धोए होंगे उसके बाद वो डिस्को गई होगी। तो रीता वेंट टू डिस्को आफ्टर शी हैड वॉश्ड हर हेयर, अपने बाल धोने के बाद में वो डिस्को गई। ओके, सो रीता वेंट टू डिस्को आफ्टर शी हैड वॉश्ड हर हेयर। तरुण टेलीफोन द पुलिस हिज कार ब्रेक डाउन, अभी पहले उसकी कार खराब हुई होगी, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके बाद उसने ट्रैफिक पुलिस को या किसी भी को भी फोन किया होगा। तो पहले क्या हुआ, कार खराब हुई। सो तरुण टेलीफोन द पुलिस बिकॉज हिज कार हैड ब्रोकन डाउन, तरुण टेलीफोन्ड द पुलिस बिकॉज हिज कार हैड ब्रोकन डाउन। सो बहुत सिंपल है, प्री पास्ट एंड पास्ट। ओके, ये लास्ट एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। यूज अ सुटेबल वर्ब इन पास्ट परफेक्ट, इवेंट हमें या जो भी ये सेंटेंस हम अपने हिसाब से कंप्लीट करते हैं, कोई भी इंसिडेंट सोच करके। ही वेंट टू द डिस्को आफ्टर, ओके, मे बी उसने डिनर कर लिया होगा या उसने काम कर लिया होगा उसके बाद वो डिस्को गया। सो ही वेंट टू द डिनर, ही वेंट टू द डिस्को आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम करने के बाद में वो डिस्को गया। तो पहले क्या हुआ, उसने अपना काम फिनिश किया तो वो प्री पास्ट, उसके बाद वो डिस्को गया तो वो पास्ट। सो ही वेंट टू द डिस्को आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। शी बॉट अ न्यू कार आफ्टर, मे बी उसको एक सैलरी राइज मिला होगा या बोनस मिला होगा तो उससे उसने नई कार खरीदी या कोई लॉटरी लगी होगी। ओके, तो पहले उसको बोनस मिला। सो शी बॉट अ न्यू कार आफ्टर शी हैड गॉट हर बोनस। Okay, she bought a new car after she had got her bonus. Now before he went to the beach, तो बीच बाद में गया, उसके पहले कुछ हुआ था तो हम कह सकते हैं कि उसने अपना खाना खा लिया था। ओके, सो ही हैड टेकन हिज मे बी फूड और मे बी लंच, सो ही हैड टेकन हिज लंच बिफोर ही वेंट टू द बीच। लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी हो सकता है। She celebrated after, ओके, सेलिब्रेशन बाद में हुआ, पहले कुछ अच्छा उसके लाइफ में हुआ होगा तो हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, उसको प्रमोशन मिली होगी। ओके, सो शी सेलिब्रेटेड आफ्टर शी हैड गॉट अ प्रमोशन। ओके, आफ्टर शी हैड गॉट अ प्रमोशन। द पुलिस अरेस्टेड देम आफ्टर, अभी पुलिस ने अरेस्ट बाद में किया होगा क्योंकि उन्होंने पहले कोई चोरी करी होगी या कोई कुछ भी गलत काम किया होगा।
तो हम ऐसा मानते हैं कि समझो उन्होंने कार चुराई होगी। ओके, सो द पुलिस अरेस्टेड देम आफ्टर दे हैड स्टोलन अ कार। दे हैड स्टोलन अ कार और द कार, जो भी पर्टिकुलरली जो भी उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। सो द पुलिस अरेस्टेड देम आफ्टर दे हैड स्टोलन अ कार बिफोर ही ट्रेवल टू मुंबई। ओके, मुंबई ट्रैवल करने से पहले की कोई भी हम ऐसे कर सकते हैं कि उसने, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अहमदाबाद में अच्छे से घूम लिया उसके मतलब मुंबई जाने से पहले। सो ही हैड विजिटेड अहमदाबाद बिफोर ही ट्रेवल टू मुंबई। वो अहमदाबाद में आया मुंबई जाने से पहले। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी है। कहां पर यूज होता है? जहां पर दो पास्ट के इवेंट हो, वहां पर प्री पास्ट का जो पोर्शन है, प्री पास्ट के जो केसेस है, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। So friends, bye. I'll see you in the next session once again. Do revise this session and the previous ones. Bye bye.